quite a lot of people are reasonably familiar with Marwadi coming from Jodhpur, so I'll try and use a mix of Hindi, English and Marwadi. तो वो कहीं करीब 10,000 रुपए डुबो दिया, तो मेरे जैसा टाई लगाए हुए एडवाइजर उसको बोलेगा इंग्लिश में, no sir, but you see the market has also gone down in the same period. Nifty has gone down from 10,000 to 8,500. That's a 15% fall, whereas your portfolio has gone only 10% down. So we have outperformed. तो हम उसको क्या बोलेंगे, तू आ बैठ, मैंने जिस दिन तेरे को 1 लाख रुपया दिया था उसी दिन मैंने 1 लाख रुपए रिलायंस में लगाए थे। Sorry to interrupt, can we record it? मैंने बढ़िया किया कि तूने बढ़िया किया, ऑब्वियसली उसके पास कोई जवाब नहीं है। पर हम उसको जो नहीं बता रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमने उसी दिन 1 लाख रुपया यस बैंक में भी डाला था। ये नाम मैं खाली एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं है। 1 लाख रुपया यस बैंक में भी डाला था और वो 90% टूट गया, 500 रुपए का 50 रुपए रह गया। तो हमारा जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, रिलायंस का 1 लाख 1.5 लाख हो गया और इसका 1,10,000 रह गया, तो टोटल 1,60,000 2 लाख का, उस पे 20% नुकसान हो गया। तो अब हम क्या कहें उसको? तो हमको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि यस बैंक में हमारा नुकसान हुआ, उसको हम पहले रिलायंस ही बताएं। बट जब तक हम हमारे पोर्टफोलियो का एक्चुअल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, दिन भर लगे हुए हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, टिप्स भी ले रहे हैं, उस पे हम पैसा कमा रहे हैं कि। एंड बीइंग इंजीनियर्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो दैट अनलेस वी नो आवर पाथ, unless we know the goal, we will not be able to reach here, and we will have to keep evaluating. All those studies of CPM, PERT and project appraisals and project studies, they clearly tell, and of course the basic concept, any new innovation that we do, unless it is cost effective, it doesn't help. So I think that is one basic thing that we have to keep in mind, that we have to calculate the return on our portfolio, the yield on our portfolio, the IRR, whatever we call it. हमने कितना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया हुआ है और उस पे हम पिछले 3 महीने, 6 महीने या साल भर में कितना पैसा कमा पाए। अगर वो रिटर्न बैंक फिक्स डिपॉजिट्स या कोई भी डेट इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट हम बेंचमार्क करना चाहें उससे ज्यादा आ रहा है, तभी रिस्क इन्वेस्टिंग करने का फायदा है, तभी इक्विटी इन्वेस्टिंग करने का फायदा है। अगर इतनी सब मेहनत करके नेट ऑफ लॉसेस, एंड नॉट ओनली नेट ऑफ लॉसेस, नेट ऑफ बुक लॉस, नॉट ओनली नेट ऑफ बुक लॉसेस, बुक मार्क टू मार्क लॉसेस, जो पोर्टफोलियो हमारे पास पड़ा है वो हमने क्या भाव पे खरीदा था और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, उसका जब तक हम, जैसे म्यूचुअल फंड का जो हमने 1 लाख से 90,000 का एग्जांपल लिया, that is everything. Whatever investment we have made, whatever investment on our behalf has been made by mutual fund, whatever profit booked, loss booked, and as on that date, mark to market profit and mark to market loss. Same we have to do on our portfolio, and then only we will be able to know that are we doing the right thing or not. Okay, I have a question from Krishna Gupta, I think. So we will take questions later, but nonetheless, if you have a very quick question, you can unmute yourself and ask me. Sorry, boss. That was for actually I was going for chat option, and that. Okay, no problem. So again, I'm muting everybody. As I said, we'll take the question. So that's an important point as a starting point, that we have to know where we are, what is the yield on our portfolio, and only then we will be able to move ahead in terms of doing better than that. If we clearly realize that no, we are either making loss or only 2 or 3 or 4% loss, then we need to rework on our investments. So that is one thing I very clearly wanted to highlight. In general, let me remind you, we don't do. And in fact, not only this, the next stage of this will be to calculate time and rate of return. So we have to look at what index level we withdrew from our portfolio, our saving, our other investments and EMR, and how much amount. And based on that, based on index level, what is the return? So that will be the next level. So that was one thing I wanted to very clearly highlight. Moving on, part 2. I'm keeping things simpler because we'll probably try to address them more in the Q&A session. Fundamental analysis, we in between had some discussion, which is where my practice has been all throughout. So as we all know that there are various ways to invest in the equity market. There's technical analysis, there's based on derivatives. So my practice has been more in fundamental analysis. And that is also, it's very difficult to teach fundamental analysis by session. I have muted everybody, so I'm not sure where this noise is coming from.
Okay. Now the noise is not there. So I was saying it's very difficult to teach and very difficult to learn also fundamental analysis. But nonetheless, again, I'll very quickly highlight that how we move ahead is that we look at the top line growth, the sales growth of the company, and not only historic. All these refer to the future projections also. That next 2, 3, 4, 5 years, what is the growth expected? And in current scenario, we know that the growths are going to be bad. But nonetheless, talking of the ordinary scenario, after top line, should that should convert into the bottom line growth or the profit growth. So whether that is happening or not, along with sales growth, whether the profits are also going on, and that too at a decent profit margins. There are different profit margins: operating margin, EBITDA margin, PBT, PAT. All those have to be seen. So that is the next thing. Most important after that is the cash flow. So sales have been made, but the business is receiving cash or not. Today, if we look at the most of the discussion, that is the biggest issue, especially the SMEs are facing in our country, that they are short of cash. They are short of liquidity. They don't have money for working capital. Quite a lot of them have not received their payables from the government of India. Quite a lot of them have not received from their other customers whom they have given goods to. So that is another most important thing, that cash flow has to be there in the business. Cash flow will come from two things: one, tight working capital management, and two, from regular collection of the cash for the goods sold. In fact, this is one of the ways companies siphon off money also, that they keep showing goods sold and keep creating debtors. And one fine day they write it off. And that's one way to take out money from the company. I'm not able to go into the details of these, but that is very important to keep in mind while doing fundamental analysis. And ultimately, it should return in good result in good return ratios. So return on capital and return on equity are two basic parameters that we calculate. Now, unless that return on capital from any business is higher than the prevalent rate of interest in the economy, let's say in our case of 5 or 6%, then it doesn't make putting money in that business or running that business, because we are not doing something called EVA, economic value added. If by what is the purpose of investing in a business is that we earn money. Not only earn money higher than what we can earn from any other sources. Now, what are those other sources? Very simply, we put in bank fixed deposits. Very simply, we put in government securities. Very simply, we put in some bonds, some corporate deposits, some NCDs. All those have become a hot potato nowadays, but we will come to that part of discussion also. But that is the basic thing that we can earn if I take today's interest rates around 5, 6, 7% by doing a risk-free investing in this. Now, if the business that I am running in, and this, let us link it to what I said earlier, also the yield for us to calculate on our equity investment. If the business is not generating returns higher than the prevailing interest rate, prevailing government securities rate, prevailing risk-free rate, and not adding that risk-free premium to it. So for a 5, 6, 7% economy, interest rate economy, any business should at least generate around 10% return from the capital invested in the business. If not, as I said, we are not getting the risk-free rate and not getting compensated for the risk that is being taken for investing in the business. Same applies to our equity portfolio. For a 6% kind of economy, let us add 4% risk premium for investing in the equity. If we are not able to generate 9, 10, 11% kind of rate from our portfolio over a period of time, then we are doing something wrong. We need to revisit our strategies. We need to revisit our investment calls. We need to revisit our trading, our investment portfolios. So that's the fundamental analysis leads to. We have a question: should we take inflation into account? Yes, we should. So there is always that real growth and nominal growth. Both these can be either calculated alongside or calculated separately. We should do that also. So that's very basic of the fundamental analysis. There is much more detail that goes into it. That's on the quantitative side. Of course, qualitative side, we will have to look into a lot of parameters like the corporate governance practices of the business owners, managements, the ethical practices, the past track record of, excuse me, minority shareholder friendliness, the dividend distribution, and all those other things. So that is where the fundamental analysis comes. Needless to mention that all those companies whom we call blue chip, whose market cap over the years keep growing, are generally the ones who pass through all these tests. And that is where there is this investment in blue chips or investments in mid and small cap, which are considered risky. So that was the second part. Let me move on
a lot of questions have been there, and natural discussion is that what is the current market? What will happen from here onwards? And again, on our group and on so many other groups, we keep seeing the views. There are obviously, at any point of time, there can be only three views. Either the market will go up, or market will come down, or market will remain range. And we have seen time and again that it has always been very difficult to predict market, especially in the short term. In the medium to long term, the market always follows the fundamentals, the growth rates of economy as well as the growth rates of corporates. In any case, growth rates of corporates will remain linked to the growth rate of economy. So depending on the industry, whether it is in a growth phase, it will do 2 or 3 or 4 times growth rate of GDP. Some of the industries which are in mature phase will do 1.5 times of GDP growth rate, and those who are in the decline phase will do lesser than the growth rates of GDP. So that's where the growth rate is, and that's where the market follows the direction of its economic growth and corporate growth. But coming back, the challenge, especially for trading part, always remains that what to predict in the short term. So as I said, since we have seen that repeatedly it has been difficult, there is no point trying to apply mine on the market. Now, it's easier said than done. Am I doing my job if I'm saying that? No. So I will indeed give you my market view. But before that, let me address this point only, that since there is no clarity on the market view, what should be our strategy? That is more important. Now, let me address that. Our strategy should be that whatever equity exposure we have, let us segregate it into 2 parts. 1, trading part, and 2, investment part, long-term holdings. The percentage will depend on each of us, our risk profile, the total amount of money that we have invested. Over and above that, the total safety amount at the backup that we have for running our life if all of our equity money or risky asset money goes to zero. The kind of time that we can devote to equity, the kind of risk analysis, investments, research. So that is very important, that we segregate our portfolio very clearly into trading part and investment part. Now, trading part is something where we can keep taking the short-term equity. And as I said, since it is very difficult to go right on the short term, we will go one time right, one time wrong, again, second time right, second time wrong. But since we have the trading part, we don't get affected as much. Let's say roughly in the range of 20 to 30% of our total investments in equity, just ballpark number, as I said, it will depend on each of us, we can earmark for trading. And let that 70%, I am taking 30-70 ratio for the sake of discussion, let that 70% continue in the equity irrespective of the market ups and downs, because we will not be able to catch the market bottoms and market tops. And we might realize that if we have converted 100% of our equity portfolio into trading and sold out at one point of time, taking a view on the market, like what was happening in March, the market was falling one way, and at every point of time, it was looking sensible that had I sold yesterday, I would have benefited. But at the same time, let's keep in mind that when market turned around sharply from 23rd March to till about 30th March, none of us believed it, none of us could breathe it, none of us could take that call that even if we exited, we were able to reinvest. We kept thinking that no, things are bad, market will come down, which is what we are thinking now also. So segregating our portfolio into trading part and equity part trading part and long-term investment part will save us from those risks. And now it is on that trading part that we can take a market. And now I come to my market view that yes, if we look at the fundamentals prevailing all around, we do have a lot of risks in the environment. The latest risk got added yesterday or day before by the slight bit of developments that happened in the fixed income market in terms of one of the funds closing down at 6 months. Let's see where those developments go. Or the mutual fund industry has been working overnight and over the weekend to make sure that things don't go bad. But that's a new uncertainty that has got added. Along with that, we already have the uncertainty of COVID running around with us, which is very well known to us in domestic as well as in global markets. Before that, whole of the last week, the geopolitical issues of the oil have added uncertainty. So while we do keep talking that being an oil import dependent country, oil price fall is beneficial to us, it is not beneficial to us beyond a certain point. Why I am saying that is that I don't remember the numbers right now, but around 30-40% of our international trade, export largely and import is
with the oil economic countries like Gulf countries. Now, because of the oil prices falling sharply, those economies don't do well. Our businesses with them will also. Also, let's keep in mind that quite a lot of our people work for these, and it is job for them, it is money for them, it is salaries, it is earnings for them. If those economies don't do well, those jobs will also not be there. Further, those people do remit money, lot of money to India, to their families, which get used in expenditure, consumption, investment, saving, and everything. So even that won't be there. So falling oil price beyond a certain level is not beneficial for India. A reasonable level, anything around $30, $35, $40, a range of $30 to $40, $45 is something which, and that too over and above that being stable is more beneficial. So that is another uncertainty that is there. We have already seen the result season having started. So again, we can continue to look at the result. We see that ICICI Prudential Life declared its results yesterday, and I think there was almost a 30% drop. At the same time, Alembic Pharma declared its result and it had a 30% growth. Again, I will come to my investment recommendations also, but these companies I am taking more for discussion. So result season is another uncertainty. So these are the various, and the fact that we have already reserved 25% from the bottom. And let me also add to that, that had it not been for the Reliance outperformance in last 2 days, the current Nifty Friday closing of 9,200, 300 or so would possibly already be at 8,800 or whatever X level. So keeping these thing in mind, as I said, at the risk of going wrong, by extremely knowing the fact over the last 25 years that very difficult to go right on the short-term view on the market, looks like we could see some correction in the market. Now, when I say that, let me now link it to the fact that we have earmarked 30% of our total investments to trading. Now, that is where the 30% of trading can be liquidated currently if it is not invested. If it is invested. If it is not invested, yes, very good. We have that 30% cash available to us. We can keep investing in phases as and when the market goes down. As per our expectation, let's say 5% at 8,800, another 5% at 8,600, another 5% at 8,500, and like that. And being a trading part of the portfolio, again, in between, if we get some rise in the market, from 8,400, it comes to 8,600, we can again liquidate 5 or 10%. So that is where, and if our market view goes wrong, never mind if, let's say, market runs up one way from here also to 10,050 for whatever reason, then our 70% money is invested for the medium to long term. That will protect us. Of course, there's another side to it that we are already saying market view is negative, it will come down. So we have 30% trading portfolio with us. But if we take a wrong call of doing 60-70% trading portfolio or 100% trading portfolio, if the market doesn't come down, or as I said in the March, it came down, but we were not able to catch it, and market goes up again, then we will find that we are not exposed to equity and the market is coming away. So it's very important to segregate the trading part and the holding part, investment part of the portfolio, so that we can comfortably take a view on the market. Go wrong, go right, doesn't matter. We are protected and indirectly hedged on both the sides. Of course, how to trade in trading is where non-fundamental comes in. So that is where all these our WhatsApp group chats, not that I'm recommending those methods, the tips, the information, all those things we can use, the friends and family recommendations we can use to do the trading buys. And of course, technicals are something which do help us to take shorter term calls on the market and individual stocks, of course, long term calls also. Investing in derivatives, futures and options, again, should be ideally a part of the trading portfolio and not long term investment. So these are the various ways we can do the trade. Now, last week there was a very specific discussion on Yes Bank, and even if there wasn't a discussion, that's something that always comes to our mind, that how do we handle such situations. I will try to give you some answer. Those may not be the right answer because there are no right answers. There is a message that please suggest trading and investment stocks. I will do that. Otherwise, I'm sure this session's usefulness, utility, and interest won't be over. So again, at the risk of all of us knowing equity risk, I will do that. But I just want to clear some points. Maybe it might be sounding boring to some of you. It might be sounding very basic to some of you. But these are the things we have to keep realizing ourselves, because we forget in the day-to-day WhatsApp information flow. There is a question on what should be exit strategy coming on chat. I will answer that also.
So that these are the things we have to keep realizing. It's like I'm not trying to be religious here, but आपा हनुमान चालीसा रोज पढ़ा. We know everything what is there in the, we know, remember it. But that is something we do every day. Like that, these basic concepts we have to keep making ourselves remember, realize every day so that we don't go wrong. Now coming back, there was a discussion on Yes Bank which will link to exit strategies and all those things. First of all, as I said, there is no right answer. Secondly, in some cases, whatever best we try to do, we will not be able to handle or control such kind of situation. Now, if that is the case, how do we do it? By doing a reasonable portfolio diversification. By keeping a limited weight to each of our stock, each of our company, howsoever bullish we be. हम कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं कंपनी में, कितने भी तेजी में हो सकते हैं, तो भी लगा आपने कि नहीं देखो ये तो इस स्टॉक में तो आपका रॉन्ग जा ही नहीं सका, तो एकदम शॉर्ट है, 100% है. No, and we have seen the examples. So how will we protect ourselves? Let's say, for the sake of simplicity, for the investment part of our portfolio, 70%, we keep it exposed to, let's say, 10 stocks at 10% each, which means 7% in this case. Now, let's say the cases like Yes Bank happen and we are not able to do anything, we will only be suffering, which is not a which is a big loss. I'm not saying it's a small loss, but at least we have restricted it to 7% of our total portfolio by keeping restricted. Looking at the way the Yes Bank was moving in those yesteryears, it was very easy to get tempted and keep buying more and more, which I'm sure everybody of us did. And again, as I said, unless we don't realize, unless we don't analyze our portfolio, we don't calculate the yields, IRRs, we don't take the risk management, we don't calculate the weights, we will not be able to control that. Assuming because of that bullishness, we have taken 15% exposure to the Yes Bank. When the fall happened, and because we could not do anything, the fall is 15% of our portfolio and not 7%. So that's one way to deal with it, as I said, is the risk diversification. Now, other things, what we can do is not getting into the greed. Whenever these kind of negative developments happen, especially related to corporate governance, especially related to regulatory matters, especially related to lack of clarity of the future succession, which in this case was that who will be the management and all, it's better to exit lock, stock and barrel. Aankh band karna, bech khain karna saka. That is what we have to do. Of course, we can go wrong, as I said, the issues might get resolved in 2-3 days or 1 month. The classic example being Satyam. All those who bought Satyam, who were able to smartly buy Satyam at a lower level, made a lot of money. But let me also add the similar example of Kingfisher Airline. I know a lot of people who took a bet on 2, 3, 4 rupees, 5 rupees. A lot of people took a bet in Jet Airways, 3, 4, 5, 6 rupees. Could those recover? So, as I said, risk diversification in the portfolio, limited weight to each stock, exiting lock, stock and barrel whenever negative developments. Also, there was a discussion last time that what derivatives are indicating on Yes Bank. In case of any such developments, derivatives and technicals will not remain dominant factor if there are some serious developments. Those serious developments will be dominant factor. So you will not be able to take a direction from the technical or derivative sides to such stocks. So that is something I think we have to do in case of stocks like Yes Bank. Otherwise, it will be difficult. I also addressed, which was a question from a lot of you, that how to handle portfolio diversification. It is very important that we do. Also, there is saying that can't throw good money after bad money. If we have made a mistake of investing in a stock which is coming down and we want to, because we feel it's good, keep in the know. Market is telling something. If a stock is continuously falling for some reason, then let's believe in the market. Market is the biggest part. Market knows all the information that none of us know. हम में से किसी को 2 चीज मालूम है, किसी को 3, किसी को 10. पर मार्केट को अगर 20 इंफॉर्मेशन है उस स्टॉक में तो सारी मालूम, 40 है तो 40 मालूम. तो अगर मार्केट कुछ बता रहा है तो मार्केट के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसे केसेस में. So that's how we handle the cases like this. I've already talked about, so just to take, there were questions from Vishenji Mehta of 1974 batch, Rahul Verma of 2008 batch on current market view and how to handle. As I said, that's my market view in the short term, but make sure that you have only trading part to take care of that.
There was a very interesting question from Girish Lodaji of 1980 batch. Are we going to see financial emergency? To me, it doesn't look like. The situation won't be bad like the word emergency if we add to it. There is some kind of emergency already. And what I mean by that is that हमारी इकोनॉमी में पैसे की कमी नहीं, कमी है लेंडर और बॉरोवर के मैच। आज बैंक्स के पास इतना पैसा है, स्पेशली बड़े बैंक्स के पास, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, बट वो लोग लैंड नहीं करना चाहते क्योंकि उनको एनपीए की रिस्क है। और ठीक है, जिसका पैसा है ही हैज टू डिसाइड। एट द सेम टाइम a borrower, SME sector wants money, that who will take care of it. So a mismatch of borrower and lender is happening. पैसे की कमी नहीं है. Government is trying to solve this issue, RBI is trying to solve this issue, but to that extent there has been very limited outcome till now. So there won't be a situation of financial emergency, but yes, this mismatch of borrower lender will. There was a question from Rajneesh Dadichi, 2003 batch. Also, Kamaljeet, I was discussing that which sectors. Let's go. There is also a lot of questions here. What should we do about debt funds? I will come to that also with my limited knowledge. What are the sector views now? If we try to, and I think it's a no-brainer as laymen also and as day-to-day living people, we know that whenever the COVID goes away, first of all, already it is back to basics, roti, kapda और मकान. उसमें से भी कपड़ा और मकान पे तो अभी कोई नहीं देख रहा है, हम सब रोटी पे ही देख रहे हैं. So that is where we are clearly seeing the food. And to add to that, hygiene products. And that is where we have already seen FMCG sector companies doing very well. In fact, quite a lot of companies, the good companies, are trading at a price higher than what they were trading before the COVID crisis. Quite a lot of companies are trading prices close to 52-week high even live. So that is one sector which is a no-brainer. Of course, the stock, वहाँ पे stock ढूंढना बहुत challenging है क्योंकि stock बढ़ गए हैं, valuation बढ़ गए हैं. मुझे लगता है उसके नेक्स्ट लेवल की रिकवरी आएगी लोअर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, किचन अप्लायंसेस है. So this question here, so FMCG is already high. What do we do? I will tell you that. But just before that, addressing some sectors. As I said, the next level of recovery after food and hygiene will come in some of the durables, lower end durables to start with. So something like kitchen appliances, electrical appliances, मिक्सी, फैन, आयरन, प्रेशर कुकर, पैन, जहां आज की तारीख में हमको बाल भी कटाने हैं तो देयर इज नो हेयर ड्रेसर अवेलेबल. अनफॉर्चुनेटली आपको अंडर क्लोथ्स खरीदने हैं तो यू डोंट गेट इट. सो ऐसे ही किसी के घर में मिक्सी खराब हो गई है, किसी के घर में बेलन टूट गया है, चकला टूट गया है, तो ये सब चीजें भी अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज वेयर द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिमांड विल कम इन आफ्टर फूड एंड हाइजीन. देन दैट विल बी फॉलोड बाय स्लाइटली हायर एंड like refrigerator, like washing machine, like air conditioners. That is where as a sector we will see that demand. And somewhere along with that, a latent demand of two-wheelers. जहाँ लोगों को जरूरत थी और वो खरीदना चाह रहे थे और सडनली कोविड हो गया, और जहाँ अब जरूरत हो रही है कि नहीं हमारा तो प्लान था, या अब हमको किसी दूध वाले को बिजनेस के लिए, किसी सब्जी वाले को, या इवन फॉर अस टू गो टू ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, थिंग्स लाइक दैट. So two-wheelers is somewhere that will come. After that will come in passenger vehicle, cars, four-wheelers and things like that. And much later, and we can't think of कब airlines की demand आएगी, कब hotels की, travel, leisure, holidays, very difficult to think. So that is the order of sectors in which it should be preferred. Alongside, parallelly क्या होता रहेगा, banking sector में धीरे-धीरे activity बढ़ने लग जाएगी. Banking sector is something which we can't do away with. ठीक है, लैंडिंग थोड़ी रुक जाएगी, जो हम पर्सनल लोन लेते थे वो कम हो जाएंगे, बट दूसरी एक्टिविटीज तो शुरू हो ही जाएंगी. एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे, सैलरीज क्रेडिट आना शुरू हो जाएंगी, बिजनेसेस चलना शुरू हो जाएंगे. तो बैंकिंग सेक्टर इज समथिंग दैट विल डू वेल. अलोंग विद दैट, इंश्योरेंस इज अ सेक्टर व्हिच विल सी बैक कमिंग इन गुड demand. So these are the two sectors which should not be neglected. I'll come to individual stock recommendations also in this. But that is when it comes to. Of course, as a defensive sector, we have IT sector whose growth rates have come down, will come down, but to provide stability to portfolio always remains a good bet. And there is a pharma sector here again. We know that either partly the demand for those products have gone up, pharma products, and certainly the stock prices. So the challenge remains that if FMCG and pharma are seeing demand, what do we buy? I will come to that.
So that's there it is. There was a very question from Sandeep of 1996 batch and few others also on the view on the gold. NPAs in banking sector, okay, I will come to that, but staying with the gold. Again, just like I am talking of diversification in the portfolio within equity, we have to have diversification as an asset class in our overall portfolio. Gold should be a part of our portfolio. Only thing is we need to keep in mind कि जो हमारा फैमिली गोल्ड चला आ रहा है, जो हमको इनहेरिटेंस में मिला है या जो हम लोगों के पास में है, उसको हम पोर्टफोलियो में गिन रहे हैं कि नहीं. अगर गिन रहे हैं तो हो सकता है वो ऑलरेडी 30-40% हमारे पोर्टफोलियो का हो, which is a decent exposure. In fact, which is an over exposure because over a period of time gold ने उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना इक्विटी ने दिया है. रिस्क दोनों में है. इक्विटी मार्केट डेली बेसिस पे हमको टीवी पे देखने को मिलता है तो हम घबरा जाते हैं. गोल्ड भी प्राइस डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, बट समहाउ हम घबराते नहीं. तो गोल्ड में एक्सपोजर होना चाहिए. गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू ले सकते हैं अगर हम फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते. हो सकता है ये अनसर्टेनिटी चालू रहे तो जो गोल्ड पे व्यू है वो यहाँ से बढ़ता रहेगा. अभी डॉलर टर्म्स में 1720-25 के आसपास है. हो सकता है वो बढ़े, अकॉर्डिंगली रुपी टर्म्स में भी बढ़े. So that is a view on the gold, but while buying, keep in mind that the gold has already moved up very cheap. There was a very interesting question on when to sell, and that is a point that I already had it in mind. Just another question has come on: how much of the part of the portfolio should be gold? In my view, given the fact that over a period of time it doesn't do well, it doesn't even cover inflation, ऐसे uncertain time में suddenly return बढ़ जाता है. मुझे लगता है around 15% of overall portfolio should be our gold exposure. इसको आप अपने कंफर्ट से कम ज्यादा कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा, इसमें वो गोल्ड गिने जो हमारा फैमिली गोल्ड हमारे पास ऑलरेडी है, और तभी आपका ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट होगा. अगर आप वो नहीं गिन रहे हैं तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आपको स्क्यूड हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है फैमिली गोल्ड की वैल्यू ऑलरेडी 30-40% ऑफ हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. सो कमिंग बैक, व्हेन टू सेल, बलवंत नाथ 2007 बैच का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. चक्रव्यूह में जाना अभिमन्यु को भी आता था. महाभारत बहुत पॉपुलर सीरियल था, बहुत पॉपुलर हमारी धर्म ग्रंथ भी है और अभी फिर से चल रहा है, पर चक्रव्यूह से निकलना उसको नहीं. और ये व्हेन टू सेल ऐसी ही चीज है कि खरीदने की रिकमेंडेशन मैं भी दूंगा, सब लोग भी देंगे, बाकी भी देंगे, बट निकले कब. तो ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तो बहुत ईजी है कि अगर हमारा 2%, 5%, 10% बन गया, निकल गया. बट इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ. जनरली 3 या 4 तरीके बताए जाते हैं कि हम या तो हमारा टारगेटेड रिटर्न बन जाए. तो जब भी हम ट्रेडिंग में तो है ही है, इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में भी खरीदने के टाइम हम ये रख सकते हैं एक टारगेट की 50% रिटर्न हमारा बन गया तब मैं बेच दूं. सो दैट इज वन वे व्हेन टू सेल. उस टाइम में फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट ऊपर चल रहा है, शेयर भी बहुत अच्छा है, यस बैंक है, इतना चल रहा है, चलता जाएगा. आपका 50% रिटर्न एक्सपेक्टेशन की आप. दूसरा ये है कि आपको कोई दूसरा शेयर अच्छा लग रहा है, मान लो नए आईपीओ आए बहुत टाइम, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप एग्जिस्टिंग शेयर बेचो. सो दैट इज अनदर. तीसरा ये है कि सडनली उस शेयर की परिस्थितियां बदल गई, जैसा अगेन यस बैंक में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, तो आप बेच. चौथा ये है कि आपको किसी वजह से पैसे की जरूरत पड़ गई, कुछ फैमिली में इवेंट आ गई, कुछ खर्चा आ गया, शादी है, ब्याह है, तब आप बेचो. So these are the reasons one should exit. Now let's go more deeper into it. जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 3-4 साल, 5 साल, 7-8 साल, 10 साल में HDFC बैंक को बेचने का कोई प्राइस आया? जिस लेवल पे भी आपने बेचा, जनरली थोड़े टाइम बाद उससे ऊपर ही नहीं आया. इसका पिछले कुछ दिनों का डेवलपमेंट हम छोड़ें तो ये क्वेश्चन आता है कि फिर ऐसे स्टॉक को कैसे बेचना है. कमलजीत ने एसेट एलोकेशन के लिए मैसेज भेजा है. यस, दैट्स वेरी राइट, बट स्टेइंग विद इट. एक बहुत सिंपल तरीका है जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है, और कंटिन्यूअस हम इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द उसमें रखते हैं. हमने 70% इन्वेस्टमेंट को अलोकेट किया है, उसमें 10 स्टॉक 7-7% वेटेज से खरीदे. मान लो 1 जनवरी 2020 को हमने ये खरीदी. अब हमें क्या करना है कि हमको उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं.
लेट्स से 1 साल बाद रिव्यू करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, 1 साल का कोई वो नहीं है, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, या इंडेक्स लेवल पे या इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे। मान लीजिए हम 6 महीने में रिव्यू करते हैं और हम कोविड की सिचुएशन को हटा देते हैं। नॉर्मल कोर्स में अगर हम पिछले साल का लें, मान लो 1 जनवरी 2019 को हमने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया होता और हमको 3 महीने 31 मार्च 2019 या 30 जून 2019 को रिव्यू करते हैं, इट इज क्वाइट लाइकली कि वो 10 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक का वेटेज, क्योंकि वो स्टॉक बहुत अच्छे चल गए हैं, बढ़ जाता। एग्जाम्पल मान लीजिए बजाज फाइनेंस 7% का 10% हो गया, व्हेन टू सेल। उस टाइम में ग्रीड रहेगी कि मार्केट भी अच्छा चल रहा है, स्टॉक भी अच्छा चल रहा है, पर उस टाइम में हमको ये नहीं मालूम है कि मार्च 2020 में कोविड आ जाएगा और बजाज फाइनेंस 60% टूट गया। आपका जो 7% का उस टाइम का वेटेज 10% हो गया है, आप आंख बंद करके 3% उसका वेटेज काट दें। दो चीजें हुई, आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्वेश्चन है अगर स्टॉक चला तो चला तो 7% आपका एक्सपोजर है ना, कहाँ नुकसान है। इनफैक्ट उसी पोर्टफोलियो को आप 30 जून के बाद 30 सितंबर को रिव्यू करेंगे तो बजाज फाइनेंस उस टाइम इतना चल रहा था कि फिर से वो 7% वाला 30 सितंबर को हो सकता है 9% हो जाए, फिर से 2% आप प्रॉफिट बुक कर लो। दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर टू व्हेन टू सेल। उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। जो मैंने पहले जो आपको बताए थे वो टेक्निकल जार्गन है, वो हमारे जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए, बहुत सेवी चीजें बनाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए काम में आती है, बट ऐसे इंडिविजुअल प्रैक्टिकल नहीं है कि व्हेन टू सेल। जब हमारा टारगेट प्राइस आ गया, नहीं हमें नहीं पता हमारा टारगेट प्राइस क्या है, कब हो जाएगा कब नहीं होगा, हमें जब जरूरत हुई, कब हमें जरूरत है हमें भी पता नहीं, कब हमने मार्केट व्यू लिया हमें कुछ पता नहीं, ये सब नहीं होता। ये मेरे हिसाब से मेरा खुद का पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आप 7% का 9% हुआ, 10 हुआ, बेच दो। अगर स्टॉक चल रहा है, यस बैंक चल रहा था तो 7% पे मैं चलता जा रहा था। जिस दिन मेरा नुकसान हुआ, खाली 7% का नुकसान, अगर हमने ये प्रॉफिट बुक नहीं किए होते तो जो शेयर अच्छे चल गए वो हमारे पोर्टफोलियो के 15 से 20% वेटेज होते। ऐसे कुछ पीएमएस पोर्टफोलियोज भी हैं बाजार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के लिए बोलना अच्छा नहीं है। जिस दिन वो स्टॉक गिरेगा, टूटेगा, नेगेटिव डेवलपमेंट आएगा, ध्यान रखिए कि आपका पोर्टफोलियो उस दिन 20% ऑफ द वैल्यू अफेक्ट, 7% जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट की थी वो नहीं, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, क्योंकि आपने नहीं निकाला है पैसा। 60% बजाज फाइनेंस टूटा है तो आपके 20% ऑफ द पोर्टफोलियो की वैल्यू 60% टूटी। लालच कम रखें, रेगुलर पैसा निकालें। So that is a simple, practical, implementable answer to when to sell. Very important question. Debt funds, lot of questions. Yes, the times are difficult. मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड फंड में कोई रिस्क नहीं है, उनमें बने रहना चाहिए। जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, बॉन्ड फंड, इनकम फंड, उनमें अगर आप फिर से 4 से 5 साल तक बने रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहें। पर अगर आपको अगले 3-6 महीने, साल भर में का व्यू है, पैसे की जरूरत होने वाली थी या नहीं भी होने वाली थी कि बस मुझे तो रिस्क नहीं लेना है, तो आप उन पोर्टफोलियोज को रिडीम कर सकते हैं, मीडियम टर्म पोर्टफोलियोज, लॉन्ग टर्म, बॉन्ड फंड, इनकम फंड। बट जैसा मैंने कहा, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इन सब पोर्टफोलियोज को रिडीम करने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें कोई रिस्क नहीं। लार्जली ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैं कवर करना चाह रहा था। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते गए इस ड्यूरेशन में, मैंने उनको भी एड्रेस करने का क्वेश्चन किया है। 1-2 पॉइंट्स आए थे कि क्या गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगेन लाइक हम डू एक म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में सेव, कुछ स्टॉक्स में भी आप सेव कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप अपने अच्छी आइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट में भी सेव कर सकते हैं। अगेन एक क्वेश्चन था कि गोल्ड इस भाव पे भी ले सकते हैं क्या। अगर आपका एक्सपोजर आज की तारीख में गोल्ड में 0 है तो हाँ, इस भाव पे भी 5 से 10% ऑफ पोर्टफोलियो आप लेते हैं। लेट मी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक रिकमेंडेशन। सेक्टर रिकमेंडेशन मैंने दे ही दिए। तो जैसा मैंने कहा, अब हम एक बहुत डिलेमा वाले सिचुएशन पे हैं। जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की उम्मीद है, फार्मा और एफएमसीजी, उनमें स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो क्या करें। बिल्कुल सही है, डजंट लुक लाइक, बट मैं लिस्ट दे रहा हूँ कि अगर मार्केट टूटता है जैसा हमारा उम्मीद है और पैनिक आता है, और अगर उस ड्यूरेशन में अगर एफएमसीजी और फार्मा में भी हमको कुछ स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं, तो इसलिए आप वो नोट करके रखिए। मेरे पुराने रिकमेंडेशन में भी है, मैं फिर से आऊंगा उसमें।
एफएमसीजी में डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, ये 3 स्टॉक है जो आप लिस्ट में रखिए। जब भी करेक्शन आए बाजार में इन स्टॉक्स में आप अभी भी ले सकते, अभी भी से मतलब उस करेक्शन। मेरे पुराने रिकमेंडेशन में एक ब्रिटानिया है जो मुझे लगता है अभी 3000 रुपए के आसपास के लेवल पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक छोटा सा या बड़ा पता नहीं नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है कि कंपनी ने 3500%, मैंने ट्वीट भी किया था, जो लोग मुझे ट्वीट पे फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं, 3500% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब ₹1 के फेस वैल्यू शेयर पे 35 रुपए। अब कोविड जैसी सिचुएशन में जब आपको मालूम है कि बिजनेस कंडीशन डिफिकल्ट हो सकती है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आप इतना बड़ा डिविडेंड कंपनी के कैश लेवल से क्यों निकालें? मुझे लगता है इस केस में उनके प्रमोटर्स को शायद पैसे की जरूरत होगी, वो गो एयर चलाते हैं, एयरलाइन में बहुत पैसा है, उनका रियल एस्टेट में एक्सपोजर है, बॉम्बे डाइंग का बिजनेस भी थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है लार्ज पार्ट डिपेंडिंग ऑन प्रमोटर शेयर होल्डिंग 40, 50, 60, 70% उतना परसेंटेज प्रमोटर्स को जाता है। तो मुझे लगता है ये उन्होंने प्रमोटर्स को पैसे की जरूरत है इसलिए डिक्लेयर किया है, तो इसलिए अच्छा भाव है प्रॉफिट बुक करने का। एक मैसेज था कि नाम ठीक से गए नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी करेक्शन आए एफएमसीजी में 3 नाम आप लिस्ट में रखिए, डाबर, नेस्ले और एचयू। फार्मा में मेरी पर्सनल होल्डिंग डीवीज में है, मैं डिस्क्लोजर और रिस्क दे दूं, इन सब मेरी सारी रिकमेंडेशंस को, स्टॉक्स को, आइडियाज को आप ये मान के चलिए कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं पिछले 25-26 साल से मार्केट में हूँ, मैं खुद भी डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, सेबी के गिवन रेस्ट्रिक्शंस में इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, पीएमएस मैनेज करता हूँ मेरे पोर्टफोलियोज का, तो इनमें से कई सारे शेयर्स मैंने खरीदे बेचे होंगे और मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट रह सकता है, तो वो सब चीजें आप डिस्क्लोजर ध्यान में रखिए। फार्मा में लार्ज कैप में सन फार्मा और लुपिन, अगर आपका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है सेक्टर में और इन स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा अभी भी ले सकते हैं और फिर करेक्शन के लिए रुकिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए तो भी फार्मा में शायद बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है। तो ये स्टॉक्स। बीच में मैंने बात की थी इंश्योरेंस सेक्टर की, बहुत नेगेटिव न्यूज फ्लो है, कोई भी बोलेगा कि अरे बिल्कुल होकर भी इंश्योरेंस खरीद रहे हो, कितना आपका मार्च में 25-30% प्रीमियम कलेक्शन नीचे गए। किसी भी कंपनी को खरीदने का टाइम उसके नेगेटिव न्यूज फ्लो में ही है, तभी हमको वैल्यूएशन मिलेंगे। जब पॉजिटिव न्यूज फ्लो है तो अभी हम देख ही रहे एफएमसीजी और फार्मा में हमको प्राइसेस नहीं मिल रहे, वैल्यूएशन नहीं। तो मेरी 2 रिकमेंडेशन है, एक लाइफ और एक जनरल, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये स्टॉक आप अभी भी खरीद सकते हैं, बाजार गिरता है स्टॉक नीचे आते हैं तो और भी खरीद सकते हैं, डिफरेंट प्राइस। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहेगी, बाजार सुधर गया, इंश्योरेंस सेक्टर सुधर गया तो एज रीजनेबल पीरियड एज 1 ईयर में भी आपको अच्छा रिटर्न दिख सकता है, नहीं तो 2 से 3 साल में तो इंश्योरेंस सेक्टर हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिटर्न। एक आध रिकमेंडेशन मिड कैप स्मॉल कैप से भी बहुत रिस्की है, पर फिर भी एफएमसीजी सेक्टर की क्यों हम बात कर रहे थे, जिसको भी हिम्मत है कॉन्फिडेंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, किसी ने क्वेश्चन पूछा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और प्रू, आईसीआईसीआई प्रू भी अच्छा है, बट सिंस लाइफ सेक्टर में मेरी रिकमेंडेशन एचडीएफसी लाइफ की है। इनफैक्ट कल जो नंबर्स आए थे मार्च के प्रीमियम के, उसमें एचडीएफसी लाइफ ने मार्केट शेयर गेन किया है, तो हालांकि सबकी नेगेटिव ग्रोथ है कलेक्शन की, बट विद इन दैट एचडीएफसी लाइफ ने मार्केट शेयर गेन किया है। और जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। कमिंग बैक एफएमसीजी में एक मिड कैप या स्मॉल कैप जो भी आप बोले शेयर है, ज्योति लैबोरेटरी, JYOTHY, ये चेन्नई की कंपनी है, मार्गो इनका बहुत प्रॉपर ब्रांड है। सन फार्मा एंड लुपिन प्राइस इज वेरी हाई, नोट टू परचेज। एज आई सेड कि अगर आपका एक्सपोजर फार्मा सेक्टर में बिल्कुल नहीं है और सन और लुपिन में बिल्कुल नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत 1%, 1.5% अभी इस भाव पे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं मार्केट में करेक्शन आएगा कि नहीं, और करेक्शन आएगा तो इन स्टॉक में आएगा, तो आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर बिल्डअप हो जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो आप कर सकते हैं, जो मैंने किया है, क्योंकि मेरे ऊपर पार्टली सेबी रेस्ट्रिक्शन भी रहते हैं और पार्टली कई बार कॉल नहीं ले पाते हैं, तो आप फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ फार्मा फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ओवरऑल मिल जाएगा। नवनीत का कमेंट आया है, लुपिन इज नॉट हाई, यस स्टॉक बड़ा है बट वैल्यूएशन के हिसाब से अभी अच्छा है। सचिन का क्वेश्चन आया है, डीवीज लैब मेरी पर्सनल होल्डिंग है, स्टॉक बहुत हाई है, बहुत वैल्यूएशन बहुत हाई है, पर आप खरीद सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। आइडियली यस, करेक्शन मिलता है तो नहीं खरीदें, बट डीवीज में करेक्शन आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो आप अगेन थोड़ा सा अभी खरीद लें नाम के लिए, 1-1.5%, 2%, मान लो आपको 5% या 7% होल्डिंग बना ली है, और बाकी करेक्शन के लिए वेट करें। कमिंग बैक टू मिड कैप, तो एफएमसीजी में बोल रहा था, ज्योति लैब एक कंपनी है जो आप खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बीच में 110-15 था, अभी 130-40 हो गया है। मार्गो उनकी बहुत बढ़िया ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है,
मार्गो नाम का सैनिटाइजर भी अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। तो ये एक एफएमसीजी में कंपनी है जिसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, स्टॉक में फैंसी नहीं है क्योंकि मार्केट कैप कम है, प्रोडक्ट उतना विजिबल नहीं है, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया जहाँ में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है प्रोडक्ट, इसलिए उसकी फैंसी नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेते हैं 6 महीने साल भर का, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फाइनेंशियल स्टॉक में इंश्योरेंस मैंने आपको रिकमेंड की है। इस मार्केट में एनबीएफसीज में बहुत रिस्क है, हमें मालूम है, माइक्रो फाइनेंस में रिस्क है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में रिस्क है, तो इसलिए मेरे हिसाब से उनमें एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। जो 2 कंपनियां आप रडार में रख सकते हैं वो है गोल्ड लोन कंपनीज, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट कैपिटल। इनमें से मन्नापुरम फाइनेंस अभी 100 रुपए के आसपास है, थोड़ा अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे आएगा तब ले सकते हैं। मुथूट फाइनेंस बहुत शार्पली बढ़ गया है, बीच में 470-80 का लो गया था, बट वहां से अभी ऑलमोस्ट 800-800 आ गया, थोड़ा करेक्शन आएगा तो ले सकते। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस दैट आई हैव। बाकी मैं अपने वीडियोस भी पोस्ट करता रहूंगा, ग्रुप पे भी पोस्ट करता रहूंगा, आप लोग पर्सनली भी मुझसे टच में हैं और रह सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, नॉट मुथूट कैपिटल, एक क्वेश्चन आया है। मुथूट कैपिटल इज नॉट अ गोल्ड कंपनी, इट्स लार्जली एन ऑटो एनबीएफसी और नॉन सिक्योर्ड लैंडिंग बिजनेस के लिए अभी रिस्क है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। NRI OCI is not all NRIs can buy platform recommendations, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेटल सेक्टर के लिए। मुझे बहुत डर लगता है कि मेटल में इतनी वोलेटिलिटी रहती है कि एट बेस्ट आप उसको अपने ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रख सकते हैं, रिस्क लेके हिम्मत करके ट्रेड कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए न मैं खरीदता हूँ ना मेरा एक्सपोजर है, पर बहुत मुश्किल है। एक सिंपल फॉर्मूला इसमें जो इन एनी केस अप्लाई होता है, अप्लाई होना चाहिए, बाय लो सेल हाई। जब भी नेगेटिव न्यूज फ्लो हो मेटल सेक्टर पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज फ्लो हो जैसा अभी है, तब आप खरीद लो, रिस्क ध्यान में रखो कि वहां से और भी नीचे जा सकता है, बट उसके बाद जब भी चल जाए, आपका 10-15% प्रॉफिट आ जाए या कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, बेच लो। उस टाइम में लालच में मत रहो कि अभी स्टॉक चलेगा। और ऐसे ही अगर आपका एक मेटल में एक्सपोजर है, जब भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है सेक्टर पे, स्टॉक चल रहे हैं, बुक कर लो, प्रॉफिट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पीवीआर आइनॉक्स पे। मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि वो 3-4 सेक्टर, यस मेटल कैन बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। आई जस्ट सेड दैट यस मेटल कैन बी पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। लोअर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल एज सेक्टर सजेस्टेड बाय यू द बिगिनिंग। लोअर एंड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल में अभी चलेंगे कि नहीं, बट साउथ की बहुत अच्छी कंपनी है टीटीके प्रेस्टीज, वो आप देख सकते हैं, जो मुझे लगता है चलेगी। हॉकिंस बहुत चल गया है, फाइनेंशियल भी उतने अच्छे नहीं है, टीटीके प्रेस्टीज बहुत के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कमिंग बैक, पीवीआर आइनॉक्स बहुत मुश्किल है सेक्टर में फैंसी आना, बोथ बिजनेसेस चलने में भी और उनको बाजार में इंस्टीट्यूशनल बाइंग। शेयर प्राइस चलने के लिए 2 चीजें चाहिए होती, एक तो ऑफकोर्स कंपनी का परफॉर्मेंस आना चाहिए, दूसरा ये है कि ओवरऑल मार्केट चलना चाहिए और सेक्टर्स में बाइंग आनी चाहिए, कंपनीज में बाइंग आनी चाहिए। तो जब भी ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग करेगा, तो बाइंग किस में करेगा? सबसे पहले लार्ज कैप में करेगा, लार्ज कैप में लिक्विड नेम्स में भी करेगा, और उन सेक्टर्स में करेगा जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली। अनफॉर्चुनेटली सेक्टर्स लाइक सिनेमा हॉल्स, पीवीआर आइनॉक्स वगैरह में, जैसा हम सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अगर कोविड खत्म हो भी जाता है तो हम खुद ही रिस्क लेंगे क्या, सोचना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक ये चल रही है कि हो सकता है एक सीट छोड़ के एक सीट पे टिकट बेचे जाए, तो उसमें ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसी कंपनी की खत्म होगी। टिकट बढ़ा देंगे तो अगेन हम में से कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो सेक्टर्स हैं जो बहुत बाद में, आपने में से कुछ लोगों ने एयरलाइन पे पूछा, इंडिगो पे भी अभी भी क्वेश्चन आया है शैलेंद्र का, मुझे लगता है बहुत रिस्क है। और उसको दूसरे तरीके से देखिए, जब हमको बाजार में कम रिस्क वाले शेयर, एंड दैट इज माय व्यू, मैं गलत जा सकता हूँ, गलत जाता हूँ, 25 साल में बहुत बार गलत दिया, पर मेरी एक बहुत सिंपल थिंकिंग है कि अगर मुझे अभी इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर सस्ते में मिल रहे हैं जो बहुत नेगेटिव न्यूज फ्लो है, तो मैं जबरदस्ती, क्योंकि फैंसी है, बहुत सारे ग्रुप्स पे आ रहा है, उन शेयर्स में क्यों जाऊं जैसे पीवीआर और आइनॉक्स जिनमें बहुत रिस्क है। तो इसलिए वो रिकमेंडेशन नहीं है। ऑटो एंसिलरी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि
जब हम सेक्टर के ऑर्डर में जाते हैं तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे ऑटो एंसिलरी सेक्टर आ रहा है। पर कॉन्ट्राबेट के हिसाब से सो अभी मार्केट दो जगह बट गया है। एक एफएमसीजी और फार्मा, सबको मालूम है डिमांड बट प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, हो सकता है रिजल्ट भी अच्छा है और शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं, वैल्यूएशन कुछ में बढ़ गए। दूसरे सेक्टर पे हाई बीटा सेक्टर्स है लाइक बीएफएसआई, सबको मालूम है बहुत हालत खराब है, एनबीएफसीज की, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की शेयर भी बहुत टूट गए हैं, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है पर लेने की हिम्मत। पर जैसे मैंने कहा वहां हमें लेने की हिम्मत रखनी चाहिए, स्पेशली दो सब सेक्टर्स ऑफ बीएफएसआई में, एक इंश्योरेंस कंपनीज में और एक अच्छे वेल मैनेज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। नाम लेने में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, और भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेरी फैंसी में कभी भी नहीं रहे हैं। आप उनका साल 2 साल 5 साल 10 साल का चार्ट लेके देखेंगे तो चार्ट कंटिन्यूअस वन वे डाउन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने कभी पैसा नहीं बनाया है पब्लिक सेक्टर बैंक शेयर्स में, न सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक, इन जनरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने। एक क्वेश्चन आप में से किसी का कोल इंडिया पे भी आया था, कोल इंडिया का आप चार्ट देखेंगे तो वन वे डाउन है। बहुत लोग उसको डिविडेंड यील्ड मानते हैं, मेरा भी डिविडेंड यील्ड के कुछ रिकमेंडेशन है पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे, पर उनमें कोल इंडिया नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया का शेयर गिर जाता है बहुत जाता है जितना डिविडेंड। तो मान लो 120-30 रुपए का शेयर है, 10 रुपए डिविडेंड देता है, शेयर प्राइस 100 या 90 पे, तो हमें 10 रुपए का डिविडेंड हमारे में से ही मिला और 20 रुपए का नुकसान और हो गया। तो इसलिए वो मेरी रिकमेंडेशन में नहीं है। कमिंग बैक टू ऑटो एंसिलरी, सो अगेन बिफोर दैट वेरी क्विकली मैं बात कर रहा था कि एफएमसीजी और फार्मा अच्छा परफॉर्मेंस है बट वैल्यूएशन हाई है। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर वैल्यूएशन अच्छे हैं, नेगेटिव न्यूज फ्लो है, पर अभी देखना चाहिए, अभी लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रा सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस सूनर और लेटर रिकवर हो। हमें मालूम है वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एन एंड, इंडिया इज नॉट कमिंग टू एन एंड, उसमें ऑटो सेक्टर है। इसलिए मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज में अच्छी कंपनीज पे धीरे धीरे ग्रेजुअली करके बेट ली जा सकती। उनमें जो नाम है, मारुति आप में से कुछ लोगों ने पूछा, बहुत अच्छी कंपनी है, वेल मैनेज कंपनी है, थोड़ा सा इस भाव पे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा जब भी थोड़ा नीचे जाए ऊपर जाए अलग अलग। विद इन टू व्हीलर बजाज ऑटो एक बहुत अच्छी कंपनी है, फॉर नो स्पेसिफिक रीजन हीरो मोटर्स से मेरा ज्यादा प्रेफरेंस बजाज ऑटो में है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स में भी एक्सपोजर है, कैश रिच भी है। इस कोविड की कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम को हीरो मोटर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से हैंडल कर। तो ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस है। एसबीआई पे एक आया था, मेरा नहीं संभव, मेरा कंफर्ट नहीं बनता है। आप इन सबको शेयर्स को आपके ट्रेडिंग परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो 30% में रखिए, बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। पब्लिक सेक्टर शेयर्स अगर आप राइटली ट्रैक कर सकते हैं, राइटली आपके टेक्निकल रिकमेंडेशंस एडवाइजर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं, डेरिवेटिव के थ्रू ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो इनको आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखिए, बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप इनको नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी करंट भाव पे खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है रिजल्ट खराब आए थे तो कल नीचे भी। तो ये थे, मुझे पता नहीं कितने बज गए हैं, 12:50 1 बज गया है, हमने करीब 12:15 बजे शुरू किया था। वेरी क्विकली कुछ एक आध क्वेश्चंस और हो तो मैं आंसर कर सकता हूँ, but maybe we can have some more shares. Have you segregated actually your long term portfolio and short term? How you have segregated? तो मैं सेबी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से being a portfolio manager मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं है, मुझे डेरिवेटिव्स में खेलना अलाउ नहीं है, मैं खाली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। इसलिए मेरा सारा एक्सपोजर इक्विटी फंड्स का भी और डायरेक्ट इक्विटी का भी लॉन्ग टर्म है। बट जैसा मैंने कहा कि आप एक पर्टिकुलर रेशियो, इनफैक्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जब आप पोर्टफोलियो सेग्रीगेट कर सकते हैं परसेंटेज में, उसमें सेम कंपनी आपकी ट्रेडिंग में भी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है। रिलायंस की आप 80 शेयर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द 70% ऑफ पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं और 20 शेयर आप ट्रेडिंग में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी आपने पूरी इन्वेस्टमेंट में डाल दी तो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो करें। ऐसे ही आपका खाली पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा मैंने कहा, सिर्फ मेरा कंफर्ट नहीं है तो मैं उनको ट्रेडिंग में ही रिकमेंड करूँ। ये आप कर सकते हैं। सेम कंपनी बजाज फाइनेंस, आप हालांकि बजाज फाइनेंस में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिली, बट फिर भी आपको लगता है मारुति है जैसे, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ और मार्केट के साथ भी ऊपर नीचे हो रही है, तो अगेन उसके आपको 50 शेयर लेने हैं तो 40 शेयर आप लॉन्ग टर्म में लेकर रख दीजिए और 10 शेयर आप ट्रेडिंग के लिए रखिए। तो दैट इज हाउ यू कैन सेग्रीगेट, नॉट ओनली इन परसेंटेज टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल आल्सो।
मैं और कुछ कोशिश कर रहा हूँ। एक शेयर्स लाइक मर्सिडीज ग्लोबल शेयर्स पे मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। डीमार्ट पे एक क्वेश्चन था, कंपनी के परफॉर्मेंस में भी प्रेशर आएगा क्योंकि 50% स्टोर उनको बंद करने पड़े हैं, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, बट ये एक अच्छा शेयर है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बेचने वाले बेचते नहीं है, इसलिए आपको शेयर मेरी जो आप पुराने वीडियोस में जाएंगे तो उनमें भी रिकमेंडेशन में कहा जब भी कभी करेक्शन आएगा तो ले सकते हैं, रिजल्ट भी आएगा। आईटी शेयर्स में किसी ने अभी भी रिकमेंडेशन पूछे, मेरे लिस्ट में भी थे, तो मुझे लगता है एक डिफेंसिव बेट रहेगा। बहुत तेजी से नहीं चलेंगे मार्केट में, बट गिरेंगे भी नहीं। लार्ज कैप में मुझे टीसीएस एक शेयर है जो अच्छा लगता है, इन्फोसिस को हमेशा आउट परफॉर्म करता है। इन्फोसिस से वैल्यूएशन महंगा है, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इन्फोसिस लो, बट वैल्यूएशन हमेशा से गैप रहा है, टीसीएस हमेशा से महंगा रहा है, और हमेशा परसेंटेज टर्म्स में आप उसके रिटर्न देखेंगे थोड़े से लॉन्ग टर्म में, 1 साल 2 साल 3 साल के व्यू पे, तो इन्फोसिस को आउट परफॉर्म किया है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन वो रह सकता है। पर इन्फोसिस भी ले सकते हैं, कोई खराब कंपनी नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। जीएनएफसी पे एक क्वेश्चन था, मुझे ये सब कंपनी संभव पसंद नहीं। कमोडिटी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत मुश्किल होता है, पर आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये था। और कुछ लास्ट क्वेश्चंस जो मैंने मिस कर दिए हो आप रिपीट करके भेजे। लूपिंग बॉट 50 लॉन्ग टाइम बैक एट 1600 अभी रखी है, अभी चलना शुरू हुआ है, 1600 शायद आ जाए, नहीं भी आएगा तो देखेंगे। बट आईटीसी पे एक क्वेश्चन आया है, कुछ शेयर्स हैं जो हिंदी में या मारवाड़ी में बोला ना आपा कि अलग अलग सेक्टर से, जिनके नाम बड़े दर्शन छोटे। आईटीसी आपका एफएमसीजी में से है, एम&एम आपका ऑटो में से है, और कौन सा शेयर में नाम लेना चाहूँ, याद आएगा तो बताऊंगा। ये स्टॉक्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं चले, इनके मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, आईटीसी का एक्सीलेंट मैनेजमेंट, एम&एम का ग्रेट मैनेजमेंट, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस, माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस। बट अगर आप प्री कोविड की बात करें, कोविड तो चलो नॉर्मल सिचुएशन हो गई, आप जनवरी तक की जाके साल 2 साल 3 साल 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आईटीसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव अंडर परफॉर्मर, मार्केट का भी और विद इन द सेक्टर ऑल्सो। सेम वे एम&एम मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है। तो ये शेयर्स आपके, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ जैसा मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में संभव मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं आता है, बट ये शेयर जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो आईटीसी, एम&एम इन शेयर्स को आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, कोशिश कीजिए। अभी आईटीसी में खाली नया एक डेवलपमेंट पिछले महीने हुआ था कि अब उन्होंने अपना डिविडेंड पे आउट चेंज कर दिया था, 80% पे आउट रेशियो अनाउंस कर, उसके बाद यील्ड अच्छी हो गई है, तो उस वजह से अगर उसकी री-रेटिंग मार्केट में हो जाए तो हो सकता है शेयर चलेगा। पर अदरवाइज जैसा मैंने कहा लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसको मुझे लगता है पर्सनली सिगरेट बिजनेस का बहुत ओवर है। एम&एम क्या है कि होल्डिंग कंपनी होगी, तो उसके जो ऑटो बिजनेस अच्छे भी करते हैं तो उसका वैल्यूएशन नहीं मिलता है, क्योंकि उसका टेक महिंद्रा में होल्डिंग है, कभी वो अच्छा नहीं कर रहा होता है, उसका महिंद्रा लाइफ में होल्डिंग है, कभी अच्छा नहीं कर रहा होता है, उनका ये हमारा जो रिजॉर्ट बिजनेस है वो है, उनका रियल एस्टेट बिजनेस है वो है, ये सब शेयर्स अच्छे नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि एम&एम का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो जैसा मैंने शुरू में बात की, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाई सिंगल लो डबल डिजिट में है, 9-10% के आसपास, इसलिए मार्केट उसको रेटिंग नहीं देती, पर ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, तो ये आप उनपे ले सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ओके, 2-3 क्वेश्चन और आए हैं लास्ट में। पेज इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कॉशियस जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है शेयर का, बिजनेस में बहुत प्रेशर था और अभी और प्रेशर है। अभी जैसा मैंने कहा कि डिमांड लो एंड प्रोडक्ट नहीं आएगी फूड एंड हाइजीन के बाद, बट अभी डाउन ट्रेडिंग हो जाएगी। अभी लोग हो सकता है पेज के अंडर क्लोथ खरीदने के बजाय उससे थोड़ी सी लोअर एंड ब्रांड, थोड़े से रिकमेंडेशन, थोड़े से लोअर एंड ब्रांड के शेयर्स के अंडर क्लोथ खरीदें, तो इसलिए वो नहीं रहना चाहिए। डिविडेंड यील्ड पे क्वेश्चन आया है, मेरा वीडियो है, मैंने रिकमेंडेशन भी दी है, मैं फिर से रिकमेंड कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं डिविडेंड यील्ड का फैन हूँ। डिविडेंड यील्ड में जो बहुत बड़ी चीज होती है वो हमें ध्यान रखनी है कि हमने जिस भाव पे शेयर खरीदा, डिविडेंड लेने के बाद
वो भाव मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो डिविडेंड भले आ गया बट हमारा शेयर की वैल्यू नीचे गिर गई तो हमारा नुकसान हो। और ये भी है कि हम डिविडेंड यील्ड पिछले साल के डिविडेंड पे कैलकुलेट करते हैं। एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि डिविडेंड मेंटेन रहेगा कि नहीं, तो कोविड सिचुएशन में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और मैंने इसीलिए पब्लिक सेक्टर कंपनी जो मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूँ वो ही रिकमेंडेशन दी थी। तो जो मुझे याद आ रही है उसमें एनएमडीसी है, एनटीपीसी है, एनएलसी नेवली लिग्नाइट है, और एक हिंदुस्तान जिंक जो नॉट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और एक आध शेयर और है जो मुझे याद नहीं आ रहे, वो आप अभी भी दे सकते हैं। ऐसा मेरा अंदाज है कि उनका डिविडेंड मेंटेन होगा क्योंकि उनकी कैश पोजीशन डिसेंट है और उनको कैश रिक्वायरमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो सबसे बड़ा उन पर प्रेशर रहेगा वो रहेगा कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सारी अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी से डिविडेंड देने को बोले, इसलिए वो डिविडेंड दैट्स इट। गैस सेक्टर पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस अच्छी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है। हो सकता है अभी थोड़ा चलने में टाइम लगे बट आने वाले टाइम में गैस क्लीन फ्यूल ही रहेगा एक डिमांड ऑफ द टाइम। तो वो कंपनीज है जो धीरे धीरे जब भी बाजार करेक्शन में मिले, शेयर प्राइसेस करेक्शन में मिले, लेके थोड़ा उनमें पेशेंस रखना पड़ेगा रिजल्ट इंप्रूव होने में। मुझे लगता है मैं आज इस सेशन को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत प्रेम रहा है, बहुत इंटरेस्ट रहा है। वी कैन कीप डूइंग दीज सेशंस अगेन एंड अगेन। इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना कई बार मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं अपने मार्केट व्यूज, सेक्टर रिकमेंडेशंस वीडियो के थ्रू भेजता रहता हूँ, भेजता रहूंगा। अपने ग्रुप पे भी डालता रहूंगा। वेरी क्विकली एक क्वेश्चन डेयरी कंपनीज पे आया है। समहाउ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेयरी कंपनीज ने भी इन्वेस्टर्स का बना नहीं किया। उसके एक दो कारण तो रहे हैं। कंपनीज हो गई, तो इसलिए डेयरी कंपनीज में भी उतना कंफर्ट नहीं है। पर अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी एनालिसिस है, स्टडी है, तो आप कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर पे 2-3 बार क्वेश्चन आया, मैं मिस कर गया। पॉजिटिव व्यू है, भारतीय टेलीकॉम करंट भाव पे भी आप ले सकते हैं, धीरे धीरे नीचे आए तो रिकमेंड कर सकते हैं। समहाउ वोडाफोन पे मेरा कंफर्ट नहीं है, बट सबकी इंडिविजुअल स्टडी पे डिपेंड करता है, अपने अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है वो आप वो ले सकते हैं, बट टेलीकॉम पे ओवरऑल क्वेश्चन तो आते जा रहे हैं बट इतना हैंडल करना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे समहाउ मेरा कंफर्ट नहीं है। कंपनीज को बहुत कैश फ्लोज की प्रॉब्लम है। अगेन जो मैं बात कर रहा था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर कंपनी इकोनॉमिक वैल्यू एड नहीं कर रही है, अगर कंपनी मार्केट में चलने वाली गवर्नमेंट रिस्क फ्री रेट जितना रिटर्न अपने धंधे से कमा के नहीं दे रही है, तो उस बिजनेस में हम इन्वेस्ट क्यों करें? और इनफैक्ट उस बिजनेस चलाने वाले को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों इन्वेस्ट करे, विच इज वेयर गवर्नमेंट्स कम इन। उन बिजनेसेस को किसी ना किसी को तो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, तो वो हम थोड़ा सा इकोनॉमिक थ्योरीज डिस्कशन पे चले जाए। जो अगर किसको इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड है तो मैं बाद में अलग डिस्कशन ले सकता हूँ, बट यहाँ हमारा सोल ऑब्जेक्टिव एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमारा रिटर्न कमाना है। जब वो कमाना है तो हम वो नहीं करें। वो जो फिलैंथ्रोपी करनी है, आई एम श्योर हम लोग सब कर रहे हैं, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो करें। जिन कंपनीज में हम शेयर प्राइस नहीं चल रहा है उनमें फिलैंथ्रोपी का पैसा नहीं डालें। तो ये एक काम करें। एचडीएफसी बैंक पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आया है कि सक्सेशन चेंज हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बड़ा इफ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और एज अ शेयर, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस मॉडल आई एम टेम्प्टेड टू रिकमेंड इट। बट हम अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं तो हमने इनवेरिएबली देखा है कि जब भी सीईओ चेंज होता है, आते ही वो पिछले सीईओ, पिछले एमडी, पिछले चेयरमैन के जो एनपीए उन्होंने नहीं निकाले होते हैं, दिखाए होते हैं, उनको दिखाता है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक तो पब्लिक सेक्टर नहीं है, और दूसरा उसका जो बिजनेस मॉडल है, उसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसमें नए आने वाले सीईओ, एमडी या चेयरमैन के लिए अगर ऐसा मानते हैं तो कि ज्यादा एनपी जितने वो दिखाते हैं उससे ज्यादा है, हो सकता है नहीं हो, तो हो सकता है नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर है तो भी उनके बिजनेस मॉडल में, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में नए चेयरमैन को आके उन एनपीएस को दिखा पाना इजी होगा कि नहीं? अगर दिखा पाएगा और वो एग्जिस्टिंग लेवल से ज्यादा है, चेयरमैन के आने का वेट करें।
इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस प्रश्न का अभी कोई भी जवाब नहीं है. As a good long-term performing share, as a good business model, as a one of the largest private sector banks, as I said, I am tempted to recommend it. But management change होने के बाद क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कितने रखे हैं? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में 15 से 20 शेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अनदर 10%, लेट्स से 20 शेयर एक मिनट के लिए मान लीजिए, उससे ज्यादा आप ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा रिटर्न भी आपका नीचे जाता रहेगा. उससे कम आएंगे, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 10 पे आते हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है. तो इसलिए 15 से 20 नंबर ऑफ शेयर्स आप इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में रखें. 5 शेयर आपके इनवेरिएबली एडिशनल आपके ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में जुड़ जाने वाले, 5 से 10 शेयर. तो मान लीजिए आपका 30 शेयर में एक्सपोजर हो जाएगा, विच इज गुड. पक्का अब मैं ये सेशन यहाँ पे रोक रहा हूँ, एंड लेट्स डू अनदर सेशन. थैंक यू वेरी मच.